Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Jai Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Girivaradhari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. So welcome all of you for today's class, and you'll be surprised to have me on this day on for Srimad Bhagavatam. Actually, Adinan Prabhuji's health is not well, and he is not being able to speak very well. So this is why he is cancelling. So I requested him not to cancel. Rather, we can have some other spiritual discussions on this, at least for today. सॉन्ग कैसे जाएगा ये ना ठीक है यूर म्यूटेड ठीक है yeah so song was still been anyways so let us start and we are going to discuss very important thing today. It's the importance of Ekadashi. So it is the importance of Ekadashi what we are going to discuss. So we'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So coming 11th, that is on Saturday, is Nirjal Ekadashi. So I thought of having a small talk on Ekadashi because it was long due, and many of you have requested that if we can have a small class on Ekadashi. So we'll take this opportunity of today's Bhagavatam, turning it into Ekadashi class. So Ekadashi is a very, very important day for all the Vaishnavas all across the world, because on this day we perform all kind of devotional services to please Krishna, so that our journey towards spiritual growth is fast-tracked and we can attain all good fortune by the blessings of Lord Krishna. So let us go a little bit on the backstory of Mother Ekadashi, how she appeared, and all what happened then. So this was the time when there was a demon called Mura, and he was a great he was a very knowledgeable demon. Generally people think demons are foolish, but they're not. Actually, they're very intelligent people. Materialistically speaking, they're very, very intelligent people. So they had all kind of they developed all kind of weapons to defeat the demigods, to defeat the devatas. So, and the same he did. He defeated devatas many, many times, and devatas, all of the devatas from various different planetary systems were very perturbed by his presence. So they were on the run, and this is why they approached Lord Brahma, that what should we do? Lord Brahma is in charge of this universe, and whenever the devatas are in problem, they will consult either Lord Brahma or Lord Shiva. They will not directly consult Lord Vishnu at times, because Lord Vishnu is not like visible to them. He is not approachable to them. But only Lord Shiva and Lord Brahma can approach them, because they both are pure devotees of Krishna, and they both can approach Lord Vishnu without restriction.
But otherwise, other demigods, they do not have that kind of a privilege so that they can directly approach Lord Krishna. So therefore, they went to Lord Brahma and asked, what should we do? We are all in great difficulty. So Lord Brahma, uh, they uh, they were so seeing them in so much of distress, and so he got compassionate and he said, let's go to Lord Vishnu and let's pray from him. Let's understand from him what is his plans. So they all went there, and as usual, they sang Purushukta, and Lord appeared, and Lord gave all of them darshan. So Lord Brahma initiated the talk, and he said that, Lord, there is this demon named Mura. So what should we do? He is very, very powerful, and all the demigods, it's not in their capacity to defeat him. So Lord smiled and he said, don't worry, I'll take care of that. So Lord Vishnu, out of his sporting nature, sometimes even, Krishna, let's say here, Lord Vishnu, he has this desire to fight, but very seldom he gets this desires fulfilled, because not many demons are there to fit that criteria. So therefore, sometimes he sent his own devotees, just like Jai Vijay were there in the spiritual world. He sent them down here in the material world so that he can fight, because fighting is not what happens generally in spiritual world. Correct? Spiritual world, there is no fight. Only in material world, Krishna, have this. He can complete his desire here to fight. So sometimes he sends his devotees, and sometimes some demons, they qualify. So here there was a demon who was qualified, and Krishna thought, let me do a small leela. So Lord Krishna, Lord Vishnu, he thought, let me help these demigods, and meanwhile I'll have a small leela. So Lord smiled and he vanished from there. He appeared in front of Mura, and Mura was swearing and cursing on the name of Lord Vishnu. So therefore, one of the name of Lord Krishna became Murari, because Ari means enemy, and Mura means that demon, Mura. So Murari, he became Murari because of this instance. Generally, demons, they hate Lord Vishnu because Lord Vishnu has a track of helping the demigods when they are in distress. So therefore, generally they have not good regards towards Lord Vishnu. So therefore, the other options which they have got is Lord Brahma and Lord Shiva. So therefore, they are great worshippers of these two demigods, but they do not worship Lord Vishnu because they think that he's our enemy. So therefore, they don't worship him much. Anyway, so Lord Vishnu was in front of Mura, and Mura was like completely furious that here comes my enemy. Generally, Lord Vishnu has no enemies. He is neutral to everyone. He is neutral to demigods and the demons as well, because both are his own creation. Okay, so he doesn't have like difference or say partiality towards anyone in this world. But it is we who make him friend and our enemy. So therefore, Murari, it is not, Mura ka naya naam Vishnuri nahi rakha gaya. Kyun? Because Lord Vishnu is not the enemy of Mura, but Mura thought that he is my enemy. Therefore, the name of Lord Vishnu has become Murari. Lord Krishna, Lord Vishnu is also known as Murari. So, anyways, coming back, so Mura was very furious seeing Lord Vishnu now has come to take the charge, and so therefore he charged on Lord Vishnu with his club, and this fight was going on for many days because they were fighting the higher realms, and higher you go in the realms, more it is on like earthly plane ke bare mein baat kare to goes much on the time. So because of the time difference, relativity of time. So here 1 year is equal to 1 day of demigods, correct?
So like that, they fought there for many days, which will turn into our case into many years. So they were fighting for many years. And then Lord Vishnu um, entered a region nearby Kailash, which can be interpreted in our understanding of like today's geography. We can say near Uttarakhand or Himachal Pradesh, somewhere there. He came there, and he had and you know, Lord Vishnu, he performs Leela. So he thought, let me now rest. I have been fighting with him so long. So let me just rest. So he entered a cave and he started, you know, he started resting there in Yoganindra. So, and then Mura was curious that, you know, what happened after he went inside the cave, because you just don't enter the cave just after your enemy, because enemy might have, you know, created a trap for you, or you know, he must be hiding somewhere, who knows. So he was waiting outside the cave for some time, but then he took the courage and he thought there is something wrong. And he with all the precautions, he went inside the cave, and he saw that Lord Vishnu is sleeping in Yog Nidra. So this time he was completely out of his mind. He said, what is this? You know, we are fighting for so long and you're sleeping like this now. You know, this is your character. And you know, he started blaspheming Lord Vishnu, and with many words. And Lord Vishnu is in Yog Nidra, you know. So this was going on, and then he thought, now let me end his life. So generally, demons in those days were also following some moral codes. They were not like nowadays, though we are not even qualified to be a demon of that kind. Nowadays in wars, people, you know how, what kind of cruelty and atrocities they you know, make others suffer. But demons were considerate in those times. They were not like these days. So they used to follow some codes. So the one of the code of fighting is not to charge on an enemy who's sleeping actually. So this is one moral code, but he thought of breaking it because there's a special enemy in front of him. So and he wanted to take you know take this opportunity. So this is why generally demons have, they follow the moral codes, but they have kind of flexible towards, they have been flexible towards this. It's not that they will adhere to the moral codes. They will follow it, but whenever there is an opportunity where there is their benefit, they will, you know, they will flex that, or say they will take little liberty towards flexibility. So here he intended to do that, and he charged on Lord Vishnu with his weapon. So you know, Lord Vishnu was in Yog Nidra. So immediately Yog Maya kicked in, and she came out in the form of a goddess, and she fought that demon and defeated the demon with no harm, like without any harm. She was not harmed at all. Like it was a play for her. She just did it. So when Mura was slayed, Lord Vishnu opened his eyes, and he saw this great goddess in front of him, and she was folded hand in front of him, and she was praying to Lord Vishnu, knowing that he is my origin. So Lord Vishnu was so happy, and he said, because you are born on this day of Ekadashi. So that day on which this fight concluded was Ekadashi. And because she came out of the body of Lord Vishnu on that day, she was named Goddess Ekadashi, Mother Ekadashi, who is also an expansion of Mother Vaishnavi. आप लोग सब जाते हैं ना वैष्णव देवी यात्रा के लिए. So मदर वैष्णवी की एक्सपेंशन है वो, या योग माया की भी एक्सपेंशन आप कह सकते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में. So she is Vaishnavi in her nature. She is, you know, great devotee of Lord Vishnu. वैष्णव या वैष्णवी का मतलब ये होता है ना, वैष्णव मतलब who's devotee of, follower or devotee of Lord Vishnu is known as Vaishnava. And Vaishnavi means for female. Okay? So she is great Vaishnavi, and she is expansion of Vaishnav Devi also. So she was standing in front of him, folded hands, and Lord Vishnu asked that
if you would like to ask anything, I'm so happy for you. She was looking very, effulgent and, newly born. How fresh somebody newly born looks. Like that she was looking. And Lord Vishnu was very pleased with the service of Mother Ekadashi. So he wanted to give some benediction. So Mother Ekadashi said, it will be selfish of me if I'll ask anything for me personally. So she didn't ask. This is the kindness of a mother. She doesn't ask anything for her or herself. She asks for her children. Correct? This happens. Mothers generally they pray for their children. They don't ask much for themselves. Mostly after marriage, this happens. Anyways, so she asks this that it will be selfish of me if I'll ask something for me. So therefore, grant me my wish that on this day, if anyone in this universe does devotional service to you, if he or she wants to serve you, that service, the intensity of that service should increase. And you should give devotion, bhakti, to all those people who are doing tapasya on this day. So therefore, Lord was very happy and he granted her wish. And this is how Mother Ekadashi then vanished, and the whole Leela was concluded like this. But this had put Lord Yamraj and his associates in great difficulty, because all through the universe, when everybody knew that on this day of Ekadashi, if we fast and if we do devotional service to Lord Krishna, then we'll be freed from all sins, and we'll be elevating towards our spiritual path. So everybody started doing that, and not very long, Lord Yamraj was out of business. What is business of Lord Yamraj? To punish the sinners. But since there are no sinners, he was out of his business. So he was like, he went to Lord Brahma and he said, please give me new department, because this department is not anymore viable, because everybody is now progressing on this spiritual path and nobody is there to punish. So what will I do? What is my service? Because Lord has given me the service to punish, but I can't do any service. So I want my time to be utilized. So therefore give me some other service, because this is not working out. And similarly, the sin personified, Pap Purush, he was also discouraged. He said, what is this now? This is a new difficulty for me. Anyways, people are very difficult to indulge them into sinful activities, because these days are Satyug. We are talking of Satyuga. Anyways, it is difficult for him to put people into sinful habits and all that. Plus, new problem, Ekadashi also came, so he was also discouraged in his routine work. So to cheer them up, Lord Brahma said, since there should be some balance, they cannot be out of balance, anything. So let's go and pray to Lord Vishnu about this. So they prayed, and Lord Vishnu said, okay, let's say if anybody who does sin on this day, sinful activity on this day, it will be magnified also. Okay. Plus, if anybody eats grains on this day, that also will indulge them into sinful habits. So therefore, Ekadashi, if people are eating grains on this day, it's not good, because it taints themselves with a lot of sinful propensities. So it is not very good thing to eat grains on this day for everybody. But you will say that now there are many people who are eating grains. So what? The problem is, see, a lot of people may eat grains on this day. They are already sinners. So अभी काले रंग पे दो काला रंग और चढ़ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नजर नहीं आएगा. So therefore there will be no distinguishing factor you will see in amongst people where they are already eating grains, because they are already sinners. But you will see this when you are a Vaishnava and you are following this culture for long, and then one day you eat grain, you will have that consciousness, that degradation of consciousness on this day. You will feel that. Okay, so this is a truth that on this day nobody should eat grain because of these conditions, because it is some kind of a truce made by Lord Krishna, Lord Vishnu, to keep the balance, so that not everybody is just elevating themselves. So therefore, everybody who's following this Ekadashi is elevated, and who are not
are degraded. So therefore we must, this is another reason why we should be very serious towards Ekadashi. Okay. And also on this day, Lord Parikshit Maharaj, he when he was there, he went out and on an excursion, and he met Kali Purusha, and Kali Purusha asked him, where should I live? Please tell me. The whole story is there. And then lastly, Kali Purusha surrenders to Parikshit Maharaj, and he asks some place of residence where he can also live in this age. So Parikshit Maharaj said, as long as I am there, I'll not be able to facilitate you much, but at least on this day, on Ekadashi day, you can live inside the grains. Because anyway, Pap Purusha is already there. So you'll meet your friend there. Okay, because wherever Kali is there, Pap Purusha follows. Because they both are friends. They both encourage each other. So therefore he allowed. So this is another reason. In Kali Yuga, the great influence of Kali is also there. Sorry. The great influence of Kali is also there in the food grains. So all this is backstory of Ekadashi. Now how to perform? Generally, upvas का मतलब क्या होता है? Upvas means upvas. Vas means to reside. जैसे होता है ना, सब लोग अपने घरों के बाहर लिखते हैं Lakshmi Nivas, like this. Vas means to live where you reside, and up means near. So residing near God, that is what is means by upvas. Okay. So upvas karne ka, if you want to do upvas, the intent of doing upvas is not to just fast. कि आज खाना नहीं खाएंगे, fasting करेंगे. No, the intent is to go near God. The intent is to be near God. So therefore, if you want to do Ekadashi Vrat, the best thing is not to drink water also. The best thing. But, if you want, you can have water at least and not eat anything else. But if you can't live without little bit of eating, because many people have, some kind of eating irregularities because of those, they cannot bear, plus some kind of medical consideration. So therefore, they can have falahar at least on this day. Fruits you can eat. Sometimes people have difficulty by फल से भी हमारा नहीं होता है. So sagahar at least you can have. So no grains, but any options from these four things are okay. And we should put our time and energy into Krishna consciousness. The idea is that. Okay? So many people will tell you many rituals कि आज के दिन बाल नहीं काटते, आज के दिन नाखून नहीं काटते हैं. All the crux is that we don't want to waste our time into all these things. We want to utilize our time as much as possible into doing devotional service for Krishna. So that is the crux. Not that कि आज के दिन ये नहीं काटते, वो नहीं काटते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, उनमें हम उलझ जाएं completely. We are totally engrossed in that. Should not do that. जिसने काट लिया तो कोई वो बहुत गलत नहीं कर दिया, ठीक है, किसने गलती से काट लिया अगर नाखून तो. The point is that we have to invest our time into Krishna consciousness. That is the crux, and that we have to keep in mind. So that is the way of performing Ekadashi, not eating anything which is grain. Anything else, you can choose your own path. If you can do Nirjala, it is good. If you can take Jal, that's also okay. Or Phal also is okay. Okay. So Ekadashi is a very important day. It comes twice in a month. एक तो कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है. अभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष मतलब वैक्सिंग मून, जब वैक्सिंग हो रही होती है, और वेनिंग मून मतलब शुक्ल पक्ष, जो ब्राइट फोर्टनाइट होता है, शुक्ल पक्ष. ठीक है. सो कई बार लोगों को एकादशी में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है. मैंने एक छोटा सा पार्ट इसके लिए भी डेडिकेट किया है 1 मिनट का, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि वो 2 एकादशी क्यों आती हैं. कई बार होता है ना, प्रभु जी कौन सी एकादशी करें, कैलेंडर में तो ये दिखा रहा है, आप तो ये कह रहे हैं. कई बार होता है आगे पीछे हो जाता है. सो ये 2 तरह की एकादशी है. टू काइंड ऑफ एकादशीज आर देयर. ओके. सो वन इज कॉल्ड पूर्व एकादशी, पूर्व विधा एकादशी. सेकंड इज कॉल्ड पर विधा एकादशी. पूर्व विधा एकादशी इज इफ देयर इज, whenever sun rises, we take Vaishnavas, they take sunrise into consideration. So if sunrise is there, but the nakshatra is in such a way that Dashmi's presence, that is the 10th day's presence, is still there according to nakshatra, then we do not count that day. We do Ekadashi on the next day. So sunrise ke time pe, sunrise, when the sunrise is there, if the date is Ekadashi, then we consider that day as Ekadashi. Okay. If there is influence of Dashmi, then that day is actually Dashmi, not Ekadashi. So therefore,
If we do on Dashmi, क्या होता है? Purva Vidha Ekadashi if we do, then there is this, injunctions in the scriptures which tells us that it increases our sinful tendencies more. So rather than giving us benefit, it's actually deteriorating ourselves. So therefore, it is harmful to do that on that day. So in all the Vaishnavas, they don't do on Purva Vidha Ekadashi. They always do Par Vidha Ekadashi, the next day. So therefore, you will find this difference. There are some calendars which they follow according to Tithi, because calendars are Tithi. So they follow the Tithi functionality, and therefore they will say today is Ekadashi. But generally, because of the nakshatra position, that day is not Ekadashi because of the presence of Dashmi at the sunrise. So we don't do that. Okay? So always do the next one. You can always confirm it with the temples when is the Ekadashi, and that way you can be assured that you are doing the best practice on Ekadashi. Otherwise, in Padma Puran it is written Daityanam Pushti Vardhanam. That means if you do Ekadashi on Purva Vidha day, then it's going to, rather than going to help you, it is going to, cause problems. So therefore, don't do on that day. It's always best that you can find it out when is Ekadashi with Prabhuji. Do it on this day. So coming 11th is Nirjal Ekadashi, and Nirjal Ekadashi is very important for all the Vaishnavas, because once Bhim asked Krishna that, Krishna, you have told all these Ekadashis, but I can't do because I am Vrikodar. I have this great hunger. I can't do all these things. That means I'm going to hell. So Krishna said, okay, you can ask this from Vedvyasji, what can be done. So Vedvyasji gave him this consideration, or say exception, that at least on this day, this is why it is called Bhima Ekadashi also. So on this day, at least if you can do Nirjal on only one day, at least one day if you do Ekadashi throughout the year, one day. This is concession for Bhim, okay, not for all of us. So all of us must follow Ekadashi every day, okay. So this is for Bhim, but at least if somebody is in that disadvantage that he cannot perform Ekadashi, at least he should do on this day, okay. So Bhim Dev was given this consideration, okay, you do on this day and you will get all the benefits of all the days of Ekadashi, but you have to do Nirjal, that without taking water you have to do. So therefore, should be our resolve that coming Ekadashi, we should all follow Ekadashi. And what should we do? Not just not drinking water is enough. Now you have to also do devotional service to Krishna. So hear more of lectures of Adinan Prabhuji on that day. If you can find some Prabhupada's books, you should read those books. If you find time, you can chant more rounds of Hare Krishna mantra. So 16 round, everybody must be doing, I guess. Anyways, if you are not, at least do 16. But if you are doing 16, then you should increase more. You can do more rounds of chanting on this. So like this, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pad Sevanam, there are 9 devotional services which we can perform on this day. And if you do that, your life will be blissful, and you will progress in your spiritual life. Okay. So thank you very much for today's session. So this is the end of English one. So do I continue? अभी क्या करना? Hare Krishna. Thank you. Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Baladeva, Subhadra Maya, Sudarshana. Jai Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra Maiya. Jayo Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Jayo Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Jayo Nitai Nitai Gaurango. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग जानेंगे एकादशी के बारे में। आप सबको मैंने इंग्लिश क्लास में भी बताया था कि आज आइडली तो भागवतम क्लास होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अदरन का थोड़ा गला खराब है, उसकी वजह से तो बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए 2 दिन से कैंसिल भी कर रहे थे। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि कैंसिल करने के बजाय हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं और भागवतम पे डिस्कस कर सकते हैं। सो एनीवेज, सो आज हम एकादशी के बारे में समझेंगे और आने वाली सैटरडे को शनिवार को हम निर्जल एकादशी परफॉर्म करेंगे सभी लोग। तो थोड़ा बहुत एकादशी के बारे में समझ लेते हैं, क्या है एकादशी और क्यों करनी चाहिए एकादशी। तो थोड़ा सा अगर हम उसकी बैक स्टोरी पे जाए तो हम देखेंगे कि किस तरह से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ और एकादशी के आने से इस यूनिवर्स में क्या क्या इफेक्ट पड़े और बाकी जितने भी यमराज और उनके एसोसिएट्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सो ये कहानी जाती है सतयुग के एरा में, जब देयर वाज दिस डीमन कॉल्ड मूरा। सो ये जो मूरा नाम का दानव था, और ये बहुत ही यू नो बहुत ही शक्तिशाली दानव था। ऐसा कोई ऑर्डिनरी दानव नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली।
हम सभी को लगता है कि दानव मतलब अगली लुकिंग, बहुत ही भद्दा दिखने वाला कोई इंसान, ऐसा सींग निकले हुए हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। बट बहुत सारे जो दानव हैं, बहुत सारे जो डीमंस हैं, दैत्य हैं, वो बहुत हैंडसम भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु है, ठीक है, वो बहुत अगली लुकिंग पर्सनालिटी नहीं था, स्ट्रॉन्ग बिल्ड and he was very handsome looking personality, like Ravan also. Okay? So not everybody who is a demon, they show their big teeth with ferocious eyes. सब राक्षस नहीं होता है ना, दानव राक्षसों में फर्क होता है। उसी तरह से जो मुरा नाम का दानव था, ये भी कोई ऐसा बहुत ही फेरोशियस लुकिंग पर्सनालिटी नहीं था, बट ये दानव था, डीमन था। डीमन क्यों कहा जाता है इनको, दानव क्यों कहा जाता है, दैत्य क्यों कहा जाता है, या असुर क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज दे आर अगेंस्ट लॉर्ड विष्णु, अगेंस्ट द प्लान ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान ने एक सृष्टि बनाई है ताकि जो जीव हैं वो भगवान के पाथ को फॉलो करते हुए बैक टू गॉड जाएं, बट ये लोग अगेंस्ट होते हैं इसके। दे वांट टू जस्ट लिव हियर, एंजॉय देयर सेंसेस, एंजॉय टू फुलनेस। तो इनका यही एक वो रहता है कि भाई हम खुद यहाँ पे खूब एंजॉय करें, ऐसा हमें नहीं जाना भगवान के नाम, है ना, और हम इसके अगेंस्ट हैं। सो दे आर अगेंस्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड असुर। और जो देवता होते हैं उनको सुर कहा जाता है, सुरगण। क्यों? क्योंकि दे आर इन हार्मनी। सुर मतलब हार्मोनियस, करेक्ट। ये हम लोग म्यूजिक की भाषा में बोलते हैं ना, भाई सुर मिलाइए आप हमसे। सुर सुर मतलब हार्मोनियस, भाई जैसा मैं गा रहा हूं वैसे आप गाइए, हार्मनी में गाइए मेरे साथ। तो असुर मतलब जो हार्मनी में नहीं है भगवान के प्लान। तो ये जो मुरा नाम का असुर था, ये भी भगवान के हार्मनी के अगेंस्ट था। तो ये देवताओं के ऊपर आक्रमण करके, उनको परेशान करके, उनको देवता लोग से भगा दिया उसने। और देवता जो थे वो भाग रहे थे इधर उधर, परेशान थे। तो ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको बताया कि मोरा नाम का दानव जो है ये तो बहुत ही डेंजरस हो चुका है, इसके पास ऐसे वेपन्स हैं। और ये जो डीमंस होते हैं इन लोगों का बहुत क्या बोलते हैं, एक हैबिट होती है कि वो अपना पूरा एनर्जी और पूरा टाइम वो ऐसे डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स में लगाते हैं जिससे वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को मार सकें ऐसा। तो ऐसे ही मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स उसने तैयार कर लिए थे और उसने देवताओं के ऊपर उसको छोड़ भी दिया। सारे देवता परेशान थे, सबने जाके ये विनती की ब्रह्मा जी से कि हम क्या करें, आप हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी उनको लेकर के लॉर्ड विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के धाम गए, उनसे बोला कि भगवान विष्णु प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। सबने पुरुषुक्ता एक सॉन्ग है, संस्कृत सॉन्ग है, वो गाया भगवान के प्लेजर के लिए। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर पूछा कि क्यों इतना परेशान। तब भगवान को बताया ब्रह्मा जी ने कि एक्चुअली मुरा नाम का दानव है, उसने त्रासदी कर दी है। भगवान को तो सब पता है, भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, बिकॉज लॉर्ड विष्णु इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस। भगवान मेंटेनेंस के इंचार्ज है, इसलिए उनकी ड्यूटी बनती है कि हेल्प करना है, उनको बैलेंस को स्ट्राइक करना है। सो देयरफॉर जितने भी ये डीमंस थे, इन्होंने स्वर्गलोक पे आधिपत्य कर लिया था, बुरा नाम का दानव रूल करने लग गया था पूरे यूनिवर्स पे। तब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और मुरारी कहा जाता है भगवान को, क्योंकि मुरा जो दानव था उसने इमीडिएटली स्वर किया दैट यू आर माय सोन एनिमी, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। क्योंकि जितने भी डीमंस हैं सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि वो हमेशा देवताओं को हेल्प करते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए नेचुरल एनिमी बन जाते हैं भगवान विष्णु, मुरारी। इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। आरी मतलब एनिमी, एनिमी ऑफ हुम, एनिमी ऑफ मुरा। मुरा के जो एनिमी है वो मुरारी, ठीक है। इसलिए कभी भी आप भगवान का नाम ऐसे सुनेंगे मुरारी, तमसारी, ठीक है, लेकिन आप कभी भी इस तरह से नहीं सुनेंगे कि कोई डीमन है उसका नाम विष्णुरी रख दिया किसी ने, इस तरह से भगवान विष्णु उसका एनिमी, ऐसा नहीं। बिकॉज भगवान विष्णु किसी के भी एनिमी नहीं है। भगवान विष्णु जो है वो न्यूट्रल है सबके लिए। तो बस बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, इसलिए कई बार दानवों का संहार करना पड़ता है। अदरवाइज भगवान विष्णु न्यूट्रल है, उनके लिए कोई फेवरेबल नहीं है, ना डेमीगॉड्स और डीमंस। बट क्या होता है कि कई बार डीमंस जो है वो एग्रेसर्स हो जाते हैं और वो परेशान। जैसे होता है ना, कई बार एक माँ अपने बच्चों को मारना थोड़ा चाहती है, बट एक बच्चा वो दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, उसको पिटाई विटाई कर रहा है, तो माँ तो थोड़ा सा डर दिखाएगी ना उसको, बड़े वाले बेटे को, क्यों छोटे वाले को मार रहे हो, ऐसा। तो उसी तरह से भगवान भी करते हैं। और लोग सोचते हैं कि अरे वो तो एनिमी है, बट भगवान किसी के एनिमी नहीं है, लेकिन लोग उनको एनिमी बना लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ता है मुरारी, तमसारी या इस तरह के नाम। कभी भी उस डीमन का नाम नहीं पड़ता है इस तरह से, तो विष्णु तुम्हारे एनिमी है।
तो हम लोग के पास, सभी के पास एक्चुअली दिखाया जाए दो ऑप्शन है। हम भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, हम अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। सो हमेशा मित्र बनाना फायदेमंद है, दुश्मन क्यों बनाना भगवान, करेक्ट। तो जैसे इस मूरा ने भगवान को दुश्मन बना लिया अपना, फिर क्या हुआ, फिर फाइट हुई, बहुत लंबे समय तक फाइट हुई। शास्त्र में बताया कि वर्षों तक फाइट हुई। अब वर्षों तक को कैसे समझें कि भाई एक आध हम लोग वर्षों तक कैसे फाइट करें, ये कोई कोल्ड वॉर थोड़ा चल रहा है कंट्रीज के बीच में। तो जो लोग वर्षों तक कैसे फाइट कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग फाइट कर रहे हैं गॉड रेल में, है ना, हायर रेल में फाइट कर रहे हैं, और हम अर्थली रेल में रहते हैं। जैसे आप हायर रेल में जाते हैं, टाइम जो है वो थोड़ा रिलेटिव है ना। देवताओं का जो एक दिन होता है, हमारे यहाँ एक साल होता है। जैसे हम देव शयनी एकादशी मनाते हैं, हाफ ईयर में आती है एकादशी। तो 6 महीने के लिए देवता जागते हैं, 6 महीने के लिए देवता सो जाते हैं, हमारे टाइम स्केल के अनुसार। हमारे लिए एक साल होता है वो, तो उनके लिए एक दिन होगा। तो उसी तरह से और हायर जाएंगे, उस तरह से टाइम जो है और श्रिंक करता है। तो वहां पर वो लोग कुछ दिनों तक लड़े, यहाँ पर वो सालों तक हो गए, ऐसे वर्षों तक भगवान लड़े। फाइनली भगवान अर्थ रेल में आए, और यहाँ पे कैलाश के नियर एक गुफा है, वहां पे जाके भगवान ने एक लीला सोची। भगवान ने कहा कि मैं अभी तुमसे लड़ लड़ के थक गया हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो गुफा में जाके वो रेस्ट करने लग गया। अब वो जो मूरा है वो बाहर खड़ा रहा काफी देर तक, बिकॉज गुफा है और उसके अंदर कोई व्यक्ति, कोई एनिमी बैठा हुआ है। तो आप भी एकदम से नहीं चले जाएंगे अंदर कि चलो चलो चलते हैं, ऐसा, बिकॉज अंदर वो कुछ तैयारी करके बैठा हो, कुछ ट्रैप बना के बैठा हो सामने में लेके, है ना, या फिर उसमें कुछ ऐसा थोड़ा डेंजर होता है, ऐसे सीधे अंदर नहीं जा सकते। इसलिए मूरा भी जो थोड़ा वेट कर रहा था कि क्या है, अंदर क्यों गया है, कुछ वेट करता हूँ बाहर निकल के आएगा, ऐसा। लेकिन काफी टाइम तक भगवान बाहर नहीं निकले, तो उसको लगा चलो भाई अंदर जाके देखते हैं क्या कर लिया ऐसा। तो वो बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए, बहुत ही अपने ढाल, अपनी गदा लेकर के एकदम प्रिकॉशन लेकर के अंदर धीरे धीरे गया। उसने देखा ये क्या, भगवान तो सो रहे हैं योग निद्रा में। ये देख के भगवान के ऊपर और गुस्सा आ गया उसको, बिकॉज भगवान एक तरह से वो प्रोवोकेशन हो गया ना कि भाई तुम तो इतना भी डिजर्व नहीं करते, कि तुम्हारे से तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता, मैं सो जाना चाहता हूँ, ऐसा। वो एक प्रोवोकेशन टाइप का हो गया कि तुमसे तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता, तुम इतने बेस हो। तो इस तरह से उसको ऐसा इंसल्ट फील हुआ कि मुझसे लड़ भी नहीं रहे हैं, जाके सो गए। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस फील कर रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में फील कर रहा था, और उसने बहुत सारी इस तरह की भगवान के लिए अपशब्द कहे। और जनरली वॉर में पहले कुछ मॉरल कंडक्ट होते थे ना, कि एटलीस्ट इतना सब जानते थे कि सोते हुए आदमी पे कोई हथियार नहीं चलाते थे, वो जग जाएगा तब उसके बाद फिर फाइट करेंगे, करेक्ट। तो इतना तो इवन डीमंस भी फॉलो करते थे पहले के टाइम के, आजकल के तो खैर में कोई नहीं फॉलो करता है, बट पहले डीमंस भी फॉलो करते थे ये मॉरल कोड्स। ये शौर्य शौर्य ने दिखाने के, शौर्य दिखाएंगे ना वो सबको कि भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अब लोग बोलेंगे क्या सोते हुए आदमी को मार के क्या शक्ति दिखा रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है ना, उसके प्राइड के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो जनरली थोड़ा ये सब फॉलो करते थे पहले। तो बट मूरा इस टाइम पे वो फॉलो नहीं करना चाहता, बिकॉज उसको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है, चलो अपने एनिमी को मार दूंगा तो मैं इससे हाथ पीछा छूटेगा इससे। तो वो इमीडिएटली चार्ज करता है भगवान विष्णु। भगवान शयन में है, फिर भी वो भगवान के ऊपर क्लब लेके, अपना गदा लेकर के वार करने जाता है। इमीडिएटली भगवान के शरीर से एक दिव्य देवी का आगमन होता है। इमीडिएटली उनके शरीर में से ऐसे एफलजेंस की तरह निकलती है, और शस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर निकलती है, और एकदम स्माइलिंग फेस उनका, और एकदम दिव्य ज्योति उनके शरीर में से निकल रही है, और वो इमीडिएटली उसको मार देती है, मूरा नाम के उस दानव को मार देती है। जब मूरा नाम का ये दानव जो है वो उसका वध हो जाता है, तो ये जो देवी हैं वो शांत स्वभाव में भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, भगवान का वेट करती है कि भगवान योग निद्रा से कब बाहर निकलेंगे। तो भगवान जब, क्योंकि योग निद्रा का मतलब क्या है, एक तो हमारी निद्रा होती है, हम सो जाते हैं, हम पूरी दुनिया भुला के हम लोग अपने सपनों में लगे रहते हैं, करेक्ट। बट भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। योग निद्रा का मतलब होता है योग, मतलब जुड़ाव, ठीक है। तो भगवान जब शयन भी कर रहे हैं, वो ऐसा शयन नहीं, हमारी तरह नहीं कि हम सब भूल गए, सब सो घोड़े बेच के सो गए ऐसा वाला नहीं है। भगवान का शयन ऐसा होता है कि भगवान रिमेम्बर करते हैं, भगवान अपने डिवोटीज के ऊपर मेडिटेट करते हैं उस टाइम पे, तो देखते हैं क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो वो उसका कॉन्शियसनेस रहता है भगवान, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। तो भगवान को पता चल गया कि पूरा नाम का जो दानव है वो अब उसका वध हो गया, तो भगवान अपनी आंखें खोलते हैं,
और देखते हैं दिव्य देवी उनके सामने खड़ी हाथ जोड़ के। तो भगवान उनको कहते हैं कि देवी तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जो जो अवतरण है, ये आज के दिन हुआ है। आज एकादशी है, तो 11th डे वो था, एकादशी का दिन था, जिस दिन उनका जिस दिन उनकी उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने इसलिए उनका नाम एकादशी रख दिया कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी, देवी एकादशी। तो अब भगवान बहुत प्रसन्न थे उनकी सेवा से, जो भगवान के लिए सेवा की ना, कोई भी भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन देवी ने भी भगवान की सेवा की, तो भगवान ने उनसे कहा कि आप मांगिए, आपको जो मांगे। तो देवी अपने ओरिजिन के बारे में जानती थी कि मैं इनसे ही उत्पन्न हुई, और भगवान भी जानते थे कि ये वैष्णव देवी जो है ये उन्हीं का एक्सपेंशन है, या योग माया का कह लीजिए एक्सपेंशन है। ठीक है, तो और भगवान भी जानते थे कि कुछ मांगेंगे तो अच्छा ही मांगेंगे, किसी के भी भले के लिए मांगेंगे। ठीक है, इसलिए जनरली जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों के लिए मांगती हैं, राइट, हर बार। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो अपने लिए कुछ मांगे सेल्फिशली। उसी तरह से जो एकादशी देवी है, उन्होंने भी अपने जितनी भी संतान है पूरी दुनिया में, सबके बारे में सोचा। इतने सारे जीव हैं, ये बेचारे यहाँ पे परेशान हैं, सब कहीं ना कहीं सिंफुल हैबिट्स करके परेशान हो रखे हैं सब के सब। तो इनकी हेल्प के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इसलिए उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा कि ना मेरे लिए तो क्या मांगू, बट एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी जीव आपकी तपस्या करें, आपकी आराधना करें, आपकी भक्ति करें, उन सभी जीवों को आप बैक टू गॉडेड लेके चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। तो इसलिए एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज आज के दिन जो भी भगवान के लिए तपस्या भक्ति करता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, आज के दिन उसका बैक टू गॉडेड जाना तय हो जाता है। Therefore, we should always think कि हमको भगवान की भक्ति करनी है और एकादशी फॉलो करनी है। ठीक है, सो जब ये सब हुआ, ये वरदान जब मिला देवी एकादशी को, उसके बाद वो वैनिश हो गई। तो सारे जितने भी जीव थे, जितने भी जितने भी लोग थे इस दुनिया में, सब अच्छा ये नहीं लगा, आवाज नहीं आई होगी फिर हमारी। एनीवेज, एक्चुअली मैंने माइक रखा हुआ था तो ध्यान नहीं दिया, मैंने माइक नहीं लगाया, आवाज कम आ रही होगी आप लोगों को। सो एनीवेज, सॉरी फॉर दैट, अभी मैंने लगा लिया माइक। सो जो देवी एकादशी है वो वैनिश हो गई, और जितने भी जो लोग हैं इस लोक में, अलग अलग लोकों में, सबको पता चल गया भाई आज एकादशी के दिन अगर हम व्रत करेंगे, भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान के लिए व्रत करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर हमारा बैक टू गॉड जाना पक्का है। सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो देखते ही देखते यमराज जो है, उनका जो यमलोक है वो खाली हो गया, क्योंकि सिन कोई करेगा, पाप कोई करेगा तब जाके तो वहां पहुंचेगा। तो कोई पाप, जितने भी लोग हैं सबके पाप कट जा रहे हैं एकादशी करने की वजह से, और सबके सब बैक टू गॉड जाना शुरू कर रहे हैं। तो यमराज काफी दिन तक तो वेट करते रहे, फिर उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो, बंद कर देते हैं इस डिपार्टमेंट को, क्या मतलब है, क्योंकि सब एकादशी कर रहे हैं, है ना, कोई कारण ही नहीं बचा कि ये मैं नर्क जैसी कोई जगह में चलाऊं, क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है ना। और यमराज जी की तो सेवा है ना, उनको उनको जो भी पाप करता है उसको, उसके पाप को भोगने के लिए नर्क में उसको यातना देना, वो उनका काम है, उनकी सेवा है भगवान के लिए। तो अब वो कोई भी सेवक जो है वो बिना सेवा के बैठा हुआ है, कितने दिन बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए अर्जी डाल दी कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो, मुझे नहीं करना है ये काम, वैसे भी कोई आ तो रहा नहीं है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा भगवान की, कोई और सेवा दीजिए मुझे भगवान की। बट वो भी जरूरी है कि कोई पाप करे तो उसको उसका भुगतान भी होना चाहिए, करेक्ट, वो भी जरूरी है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा ये बहुत सही पोजीशन नहीं है जहाँ पे सब लोग बैक टू गॉड जा रहे हैं, सब ये भगवान के धाम जाने के लिए एकादशी कर रहे हैं, ये भी बहुत सही नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी को लगा। प्लस जो पाप पुरुष था वो भी बहुत परेशान था, तो उसने कहा यार पहले ही परेशानी है कि मैं सतयुग में हूँ, भाई कलयुग में होता तो मेरा फ्रेंड है कली, उसके साथ मिलके मैं सबको सिंफुल हैबिट्स में डालूंगा, सबके अंदर पाप करने के लिए उनको उत्साहित करूंगा। बट ये तो सतयुग है, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, और मैं इतनी परेशानी से मैं लोगों को पाप करने के लिए मजबूर भी करता हूँ, तो सबके सब एकादशी करके फ्री हो जाते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। तो बहुत ही
डिससेटिस्फाइड हो गया कि ये क्या तरीका है, तो बिल्कुल सही नहीं है, और डिस्करेज हो गया। तो वो और यमराज जी सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम क्या करें, हमारी तो कोई सर्विस ही नहीं है, क्या मतलब है ना। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, बैलेंस तो जरूरी है। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि आज के दिन, एकादशी के दिन, कोई भी अन्न का सेवन ना करे, क्योंकि मैं आज के दिन पाप पुरुष को बोल रहा हूं कि तुम अन्न में जाके बैठ जाओ। जो भी आज के दिन अन्न खाएगा, जो भी आज के दिन, और अन्न का मतलब चावल नहीं है सर, ठीक है, कई लोग ये अन्न मतलब चावल समझते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज वो है, बट अदरवाइज अन्न का मतलब उसमें गेहूं भी आ जाएगा, उसमें ये जितने भी पल्सेस हैं, दाल दाल जितने भी हैं सब आ जाएंगे उसमें। हाँ, तो कुछ भी सिर्फ चावल नहीं खाना ऐसा नहीं, चावल दाल दोनों नहीं खाना, ठीक है। सो चावल दाल गेहूं, है ना, कुछ जो बीज वाली चीजें हैं जैसे वो भी नहीं खाते हैं आज के दिन, जैसे राई हो गई और ये सब। एनीवेज, तो आज के दिन भगवान ने पाप पुरुषों को कहा कि तुम जाके इन फूड ग्रेन्स में जाके बैठ जाओ, तो तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आज के दिन जो भी अन्न खाएगा तुम उसके ऊपर पूरी तरह टूट पड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसे पाप के लिए उत्साहो, जितना वो पाप के लिए उकसेगा उतना तुम्हारी भी सेवा होती रहेगी। चलो, तो उसको भी एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने इस तरह से एक अरेंजमेंट कर दिया कि ठीक है, आज के दिन कोई अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न खाया तो फिर वो नहीं होगी एकादशी। तो इसलिए वो एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं। भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को इस दिन अन्न के अंदर रहने के लिए कहा है। और एक कहानी है इसके पीछे। परीक्षित महाराज जब एक बार जा रहे थे यात्रा पे, तब उन्होंने कली पुरुष को देखा कि वो गायों को सता रहा है, और पूरी कहानी है किस तरह से कली पुरुष को उन्होंने कली पुरुष का दमन किया, और कली पुरुष ने भी इंटेलिजेंटली इमीडिएटली उनको सरेंडर कर दिया, है ना, कि मैं आपकी शरणागति लेता हूँ महाराज, आप तो बहुत बड़े महाराज हैं, है ना, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी रहने के लिए जगह दीजिए। तब बहुत सारी जगह जब उन्होंने दी कली को रहने के लिए, तो कली हर बार डिससेटिस्फाइड हो रहा था कि ये बहुत नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि तुम जितने भी जहां पर भी फोर सिंफुल हैबिट्स हो रही हैं, जो कि हम लोग फोर आपको रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताते हैं, जैसे मीट ईटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, इंटॉक्सिकेशन हो गया, और इलिसिट सेक्स हो गया, जहां पर भी चार चीजें हो रही है तुम वहां जाके रहो आराम से। तो कली पुरुष ने कहा कि भाई आपके राज्य में तो ये चार चीजें हो ही नहीं रही हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली निल है, तो मैं रहूंगा कहाँ, फिर से आपने मुझे वो कर दिया, बेघर कर दिया, तो मैं कहाँ रहूँ, आप मुझे बताओ। तो इस तरह से उन्होंने ये चार जगह उनको बोली थी कि आप यहाँ रहो। एकादशी के दिन वो जानते थे कि पाप पुरुष तो रह ही रहा है और कली जो है उसका फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि तुम भी जाके इधर फूड ग्रेन्स में रहो। एकादशी के दिन फूड ग्रेन्स नहीं खाना है, सबको पता होना चाहिए बात, और कोई खा रहा है तो फिर कली का भी प्रभाव उस पर पड़ेगा, पाप का तो पड़ेगा ही, कली का भी पड़ेगा, ठीक है। तो कली को वहां पे भी रहने के लिए कह दिया परीक्षित महाराज ने। तो इसलिए हम लोग फूड ग्रेन्स नहीं लेते हैं आज के दिन, ये इसकी रीजन है, इसकी बैक स्टोरी है, किस तरह से एकादशी देवी आई, उसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे यूनिवर्स में। जितने भी लोग थे सब भगवान की भक्ति इस दिन कर रहे थे, और सबके सब भगवान के धाम वापस जा रहे थे। यमराज जिस तरह से सेटिस्फाइड हुए, पाप पुरुष जो है वो भी डिससेटिस्फाइड हुआ, किस तरह से भगवान ने बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आज के दिन अन्न नहीं खाने का आदेश दिया, ठीक है। तो इसलिए अन्न नहीं खाना है आज के दिन। तो कैसे करना है एकादशी? देखिए, उपवास का मतलब क्या होता है? उप और वास दो शब्दों से मिलकर बना है। वास मतलब कहीं पे भी निवास करना, कहीं पे भी रहना, है ना। तो जैसे होता है ना, कई लोग अपने घरों के नाम में भी रखते हैं ऐसा, वास, राजीव निवास, या इस तरह के लोग नाम रखते हैं। सो वास मतलब रहना, उप मतलब नियर, पास, किसी के पास रहना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसके पास रहना? जिस देवता की आप उस दिन वर्शिप कर रहे हैं उस देवता के पास रहना, उसके निकट जाना, उसको उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब सिर्फ खाना नहीं खाना नहीं होता है, ऐसा कि भूखे रहना है ये उपवास है, नहीं। उपवास मतलब भगवान के निकट रहना, वो उपवास है। तो एकादशी के लिए हम किसके लिए करते हैं एकादशी? भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण को एकादशी बहुत प्रिय है, तो हम भगवान कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए हम आज के दिन उपवास करते हैं। उपवास मतलब भगवान के निकट जाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारी जितनी भी आज की एक्टिविटीज, एकादशी की जो एक्टिविटीज हैं, वो कैसी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान के निकट जा सकें, मतलब कुछ ऐसी सेवा करें जिससे हम भगवान के और करीब आ सकें, ठीक है। तो उस दिन भगवान की हमें सेवा करनी, भक्ति करनी, सेवा करनी। ये नहीं कि खाना नहीं खाया और पूरे दिन हम लोग कुछ मटेरियल काम कर रहे हैं, शेयर बाजार के वो सब चेक कर रहे हैं, और उधर क्या चल रहा है, काम में क्या चल रहा है, वो पूरे दिन उसमें इन्वॉल्व है, बस खाना नहीं खा रहे हैं। बस ऐसा नहीं करना है, खाना नहीं खाना है तो बस एक एस्पेक्ट है उपवास का, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि वी शुड एक्ट इन अ वे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम और एनर्जी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं,
भगवान की सेवा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसीलिए आप ये उपवास के दिन ना बहुत सारे डूज एंड डोंट्स वाली चीजें आप सुनते हैं, जैसे आज के दिन नाखून नहीं काटते हैं, आज के दिन ये नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे एकादशी के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, है नो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, 50 तरीके के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस और ये सब। बट हमें समझना है उसका इंटेंट क्या है। इंटेंट ये है कि आदमी अपना समय व्यर्थ ना गवाए। अभी नाखून काट रहा है, आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि वो भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, उस दिन वो बैठ के नाखून काट रहा है। नाखून काटना पहले के दिन काट लो, दशमी के दिन काट लो, नवमी के दिन काट लो, एकादशी मिली है क्या काटने के लिए? तो इस एंगल से है वो, ऐसा नहीं कि काट दोगे तो कोई वो ऐसा जैसा इस्लामिक लोगों में होता है ना, हराम है, ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो काट दिया कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये कि अपना समय व्यर्थ ना गवाओ, आज के दिन भगवान की सेवा में अपना समय लगाओ, है ना। तो जितना हो सके आप भगवान की भक्ति में क्या क्या कर सकते हैं भगवान की भक्ति में? भाई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हमारी जो नवधा भक्ति है यही तो हम करेंगे, और क्या करेंगे इसके बाहर। तो आज के दिन जितना ज्यादा श्रवण करें उतना ज्यादा अच्छा। आदिनारायण प्रभु जी के इतने सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप सुनिए। एकादशी के दिन ज्यादा लेक्चर सुनिए, ठीक है। एकादशी के दिन ज्यादा चैंटिंग करिए। प्रभु जी कहते हैं 16 राउंड चैंटिंग करना है। आई एम गेसिंग कि सभी लोग कर रहे होंगे, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 16 करिए, और जो लोग कर रहे हैं 16 वो और थोड़ा ज्यादा करिए, है ना। 32 माला करिए आज के, ठीक है। और श्रवणम कीर्तनम, ठीक है। प्रभु शिला प्रभुपाद की कितनी सारी बुक्स हैं, है ना। भगवत गीता की बुक है जिसका आप डेली पाठ करना चाहिए हमको आइडियली, बट डेली नहीं होता तो एटलीस्ट एकादशी के दिन हम खोल के देखें क्या क्या है उस भगवत गीता में, क्या पढ़ा है आदिनारायण प्रभु जी ने अपने सेशंस में। चलो खोल के देखते हैं, वापस रिवाइज करते हैं। तो उसको खोला, पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, कृष्णा बुक करके है शिला प्रभुपाद की, इतनी ब्यूटीफुल बुक है ना। बहुत सारी बुक्स हैं, इस तरह से आप पढ़िए उन बुक्स को। तो इस तरह से भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपना समय उसमें लगाइए। बेस्ट है अगर आप एकादशी के दिन जल भी ना लें, बट कई लोग हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट चलो लोग पानी पी के भी रहें। बट कई लोग होते हैं जिनको भूख लगती है ज्यादा, जिनका पित्त दोष होता है, खासतौर पे अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें, पित्त दोष में ज्यादा भूख लगती है आदमी को और वो भूखा रह नहीं सकता। तो उन लोगों के लिए है कि भाई ठीक है, फल आप लोग फल ग्रहण कर लो, केला, अमरूद, सेब, ये सब इतने सारे फल हैं भगवान ने दिए हैं, सब आप सेवन कर सकते हैं उस दिन। और कोई कहता है नहीं भाई हमें तो खाना ऐसा पका हुआ खाना और ऐसा प्रॉपर खाना की तरह चाहिए, तो शाकाहारी भोजन ले लीजिए। सब्जी रहेगी, वेजिटेबल रहेगी, कुट्टू के आटे की रोटी वोटी बना ली, इस तरह की चीजें कर ली, शाकाहारी भोजन कर लिया। तो ये सब, बट अन्न नहीं खाना है। और अन्न मतलब सिर्फ चावल नहीं है, अन्न मतलब चावल दाल रोटी सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप एकादशी परफॉर्म कर सकते हैं। एकादशी महीने में दो दिन आती है, बिकॉज एक ब्राइट फोर्टनाइट में और एक डार्क फोर्टनाइट में, है ना। डार्क फोर्टनाइट मतलब कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, तो दोनों ही पक्ष में एक बार पड़ती है एकादशी। तो महीने में 2 बार आएगी, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रभु जी कौन सी वाली करें, हमारे कैलेंडर में आज दिखा रहा है, आप कल बता रहे हो, ऐसा कैसे है ये। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो वैष्णव लोग हैं वो सनराइज के अनुसार उसको कैलकुलेट करते हैं। जब सनराइज हो रहा है उस समय क्या नक्षत्र पड़ रहा है, उस नक्षत्र के हिसाब से अगर वो तिथि दशमी की पड़ रही है, दशा दशमी दशमी की पड़ रही है, तो फिर हम उसे दशमी में ही काउंट करते हैं, हम उसे एकादशी नहीं गिनते हैं। इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। कई बार लोग जो कैलेंडर्स बनाते हैं खासतौर पर, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग ये काल निर्देशिका या जितने भी कैलेंडर्स बनाने वाले लोग हैं, वो तिथि के अनुसार लेते हैं, उसको डेट के अनुसार लेते हैं। तो उनके हिसाब से अगर आज 1 है तो कल 2 है, तो वो डेट के हिसाब से गिनते हैं। तो आज एकादशी है तो कल दशमी, सॉरी आज अगर दशमी है तो कल एकादशी है, ऐसा वो लोग लेते हैं। बट वो टाइम नक्षत्र को काउंट नहीं करते हैं। बट हम लोग नक्षत्र को काउंट करते हैं कि उस समय सनराइज के समय क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके अनुसार एक पूर्व विधा एकादशी होती है, पर विधा एकादशी होती है। पूर्व विधा मतलब कि भाई आज सनराइज के समय दशमी पड़ रही है तो आज दशमी, तो उसको हम दशमी काउंट करते हैं। तो हम लोग उसके नेक्स्ट डे करते हैं फिर एकादशी, उस दिन नहीं करते हैं जिस दिन अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो एकादशी पड़ रही हो भले से, हाँ। तो इसलिए हम हमेशा पर विधा करते हैं, नेक्स्ट डे वाली करते हैं। और वो क्यों करते हैं, बिकॉज पद्म पुराण में एक जगह पे मेंशन आता है कि जो इस तरह की जो एकादशी, जो पूर्व विधा एकादशी जो लोग करते हैं, उनका ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है ना। वो हार्मफुल, कई केसेस में हार्मफुल हो जाती है वो एकादशी। तो इसलिए बेस्ट है कि आप एक बार टेम्पल में फोन कर लीजिए, प्रभु जी से पूछ लीजिए प्रभु जी की एकादशी कब पड़ रही है, आज पड़ रही है, कल पड़ रही है, कंफर्म कर लीजिए, फिर आप उस एकादशी को परफॉर्म करिए, है ना। हम लोग बेस्ट यूज करें एकादशी का, करेक्ट। सो अब आने वाली जो 11 तारीख है उस दिन है निर्जल एकादशी। उस दिन जो एकादशी उसे भीमा एकादशी भी कहते हैं। भीमा एकादशी, निर्जल एकादशी क्यों?
बिकॉज एक बार जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को सारी एकादशी के महात्म्य बता रहे थे, तब पांडवों में जो भीमसेन है, उन्होंने एक सवाल पूछा कृष्ण से कि आपने इतनी सारी एकादशी बताई है, लेकिन मैं तो वृकोदर हूँ। वृकोदर मतलब जो बहुत ज्यादा फूड खाते हैं एक बार में, ऐसा, ठीक है। तो आप जानते हैं भीमसेन का खाने का बहुत वो था। और बट ऐसा नहीं कि बस खाना खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आलस में पड़े हुए हैं बेड पे। फिर भीम होना चाहिए, काम भी फिर भीम वाले होने चाहिए। भीमसेन काम भी ऐसे बड़े बड़े काम करते थे, और फिर उन्हें भूख भी ज्यादा लगती थी, तो वो समझ में भी आता है, वो एक नेचुरल चीज है, ठीक है। तो उसी तरह से हाँ, तो भीम जो थे, उन्होंने ये पिटिशन डाली भगवान कृष्ण के सामने कि भाई मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा इतनी सारी एकादशी, है ना, बिना खाए पिए कैसे रहूंगा मैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई आपकी जो चिंता है तो बड़ी वैलिड है, ठीक है, आप तो वृकोदर हैं, आपको कैसे होगा। तो आप इसका जो शंका निवारण है वो आप व्यास देव जी से करिए। तो वो व्यास देव जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो व्यास देव जी उनको ये बोलते हैं कि आज के दिन एटलीस्ट, जो ज्येष्ठ मास में जो ये पहली एकादशी आती है, जिसे हम निर्जल एकादशी कहते हैं, आज के दिन अगर आप निर्जल एकादशी कर लोगे भीमसेन, तो आपको सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो भीमसेन जी बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए आज की जो एकादशी से भीमा एकादशी, मतलब आज की नहीं, 11 तारीख की जो एकादशी आने वाली है उसको हम भीमा एकादशी भी बोलते हैं, ठीक है। सो भीमसेन जी ने उनको उस वाली एकादशी को चूज कर लिया कि भाई मैं आज के दिन, तो साल में वो एक दिन एकादशी करते थे, वो सारा फल मिल जाता था। बट हमें भीमसेन जी को इमीडिएट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम भी साल में एक बार कर रहे हैं और हम भी सारे एकादशी का फल हमको मिल जाए, ऐसा नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि हमारी कंडीशन और भीम जी कंडीशन में फर्क है ना। भीम तो ऐसे, उनका तो स्वभाव ऐसा था कि वो नहीं कर पाते थे बेचारे एकादशी, तब जाकर। तो उसी तरह से हम सबको एक्चुअली सारी एकादशी करनी चाहिए, बट यदि कोई नहीं करता है एकादशी सारी, तो उसके लिए एटलीस्ट वो एक दिन करे, वो इसके लिए एक तरह से मतलब कृपा है भगवान की, वो एटलीस्ट एक दिन तो करे, ऐसा, है ना। सो हम सभी को, और हमारे लिए भी, कई एकादशी हमारी टूट जाती हैं गलती से, कई बार हमको डाउट होता है कि हमने सही से फॉलो की कि नहीं की। एटलीस्ट आज के दिन, मतलब एटलीस्ट ये 11 तारीख वाली जो एकादशी आ रही है, निर्जल एकादशी, उस दिन अगर हम निर्जल करते हैं, वी कैन बी अश्योर्ड कि भाई हमने एटलीस्ट एकादशी हमने कर ली है, इस तरह से। हाँ, सो बाकी एकादशी में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ तो भगवान माफ करें उस गलती को, इस तरह से। तो इसलिए ये एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए, ये हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, बट हम करेंगे क्या, पूरे दिन टीवी देखेंगे, है ना, वो सीरियल्स देखेंगे, या फिर मूवीज देखेंगे, या फिर इस तरह की चीजें करें, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। तो शुड ऑलवेज पुट आवर टाइम एंड एनर्जी इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जितना ज्यादा हो सके। सो भीमसेन जी ने ये एकादशी की और उन्होंने वो बैक टू गॉडेड गए, उसी तरह से हमें भी ये एकादशी करनी है और बैक टू गॉडेड जाना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के आने का। और कल अगर प्रभु की तबीयत सही रही तो हम लोग भागवतम कंटिन्यू करेंगे, नहीं भी रही तो भी प्रभु से परमिशन लेके मैं आ जाऊंगा भागवतम लेने के लिए, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।